Hello dear students, welcome to the official channel of Gyandeep School. At first, I would like to say that please take your notebooks and pen and then start the class. Today I am going to teach you science of class 3 and today's topic is things around us. This is the first chapter of science of class 3. I hope that you all are stay at home and maintain social distancing. And I request you all that please follow the rules of lockdown. And I'm also follow the rule of lockdown. Okay, let's start the class. This video is for class 3. The subject is science and the first chapter is things around us. Here you can see the first topic is living things. And I hope that you already know that what is living things because you are in 3 class and I know that living things you learn living things in 2 class also. But here we should repeat that, we should recall it. Here you can see that the definition of living things is we see many things around us. Some things have life in them. They are called living things. That means हम लोग अपने सराउंडिंग में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के थिंग्स को देखते हैं. उसमें से कुछ ऐसा थिंग्स होता है जिसमें लाइफ होता है. So we can say that these things are living things. Okay? For example, cows, men, trees, dogs, and etc. I would like to repeat once again. Living things, we see many things around us. Some things have life in them. They are called living things. For examples, cows, men, trees, dogs, and etc. I hope that you understand very well that what is living things. Here, non-living things. And I know that you already know it, that what is non-living things. Some things do not have life in them. They are called non-living things. You know that when you are at home, you see that around your surrounding different types of things present there, and you guess that some things have no life in them, and you should know that these things are called non-living things. It means which things have no life in them, that types of things are known as non-living things. Here the some examples are cars, mobiles, computers, pens, books, and etc. Okay, now our topic is living things need food. You know about you that you are also a living things, and for survival we need food, or you can say that to go for growth we need food. It means you can say that living things need food. Here some points about living things that shows that living things need food is living things need food to grow. That means living things को grow करने के लिए
उसे ज़रूरत होती है क्या? फूड की। अंडरस्टैंड? एंड अनदर पॉइंट इज फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू देम। दैट मीन्स हम लोग फूड को इसलिए ईट करते हैं बिकॉज फूड हमें प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। अंडरस्टैंड? आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. Now another point is some animals like goats, rabbits and cows eat plants. Means some animals हम लोग अपने सराउंडिंग में देखते हैं जो goats, rabbits, cows क्या खाता है? Plants खाता है. And we can say that these animals are herbivorous. Okay? Here, tigers, lions, jackals, and some other animals eat flesh. And I hope that you already know about flesh. Flesh means meat, or you can say मांस. Understand? That means some animals हम लोग अपने सराउंडिंग में और हम लोग फॉरेस्ट में देखते हैं कि वो क्या खाता है? ईट खाता है अदर एनिमल, सॉरी, वो मीट खाता है अदर एनिमल के. अंडरस्टैंड? और यू कैन से फ्लेश खाता है अदर एनिमल के. ओके. ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स लाइक बियर्स एंड स्क्वायरल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. We know about ourselves that we also eat plants and animals both. And some animals also eat plants and animals both, like bears, squirrels, and or you can say crow. Okay, that means हम लोग अपने सराउंडिंग में और हम लोग खुद ऐसे लिविंग थिंग्स में आते हैं जो कि हम लोग दोनों चीज़ ईट करते हैं, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ. सो वी आर called, or these types of animal called omnivorous. Okay, here you can see the picture of a baby girl, and here you see that baby girl eat some types of fruits, or you can say that living things need food to growth. Okay, I would like to repeat once again. Living things need food. That means living things need food to grow. It means living things को grow करने के लिए food की ज़रूरत होती है. Understand? Food provides energy to them. That means food हमें provide करती है और food living things को provide करती है energy. Okay, understand? Some animals like goats, rabbits and cows eat plants. That means some animals ऐसे हैं, for examples goats, rabbits, cows eat plants. Okay, understand? Tigers, lions, jackals and some other animals eat animal flesh. That means कुछ ऐसे एनिमल हैं जो अदर एनिमल के फ्लेश को ईट करता है, और यू कैन से मीट को खाता है अदर एनिमल के. उसे हम लोग क्या कहेंगे? कार्निवोरस. ओके. ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स लाइक बियर्स एंड स्क्वायरल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. अंडरस्टैंड? दैट मीन्स सम एनिमल्स और हम लोग खुद क्या होता है कि हम लोग प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ को ईट करते हैं. ओके. Now I request you all that write down about living things need food on your notebooks, or if you know that how to take a screenshot, then take a screenshot of it. Okay. Okay, I hope that you already write down. Now next is living things grow. That means living things क्या करता है? ग्रो करता है. All living things grow using the energy
दे गेट फ्रॉम फूड। दैट मीन्स ये हो गया ऑल लिविंग थिंग्स क्या करता है, ग्रो करता है, किस चीज़ का यूज करके, एनर्जी का यूज करके, और ये एनर्जी उसे कहाँ से मिलता है, फूड से। अंडरस्टैंड? ही अ बेबी ग्रोज इनटू अ यंग बॉय or girl and then goes on to become a man or woman. That means हम लोग जानते हैं कि पहले हम लोग और हम लोग जब बर्थ करते हैं, जब हम लोग जन्म लेते हैं, तो उस समय हम लोग बेबी कहलाते हैं, हम लोग को लोग बेबी कहता है ना। दैट और आफ्टर सम ईयर्स हम लोग ग्रो करते हैं और हम लोग क्या बन जाते हैं, आ यंग बॉय और आ यंग गर्ल बन जाते हैं। ओके, देन फिर क्या होता है, आफ्टर सम ईयर्स हम लोग बन जाते हैं मैन एंड वोमैन। अंडरस्टैंड? सो वी कैन से दैट वी आर ऑल्सो ग्रो। ओके, अ चीक ग्रोज इनटू अ हैन एंड अ कब ग्रोज इनटू अ लायन। दैट मीन्स ये हो गया, चीक मीन्स, आप अगर नहीं जानते हैं तो नोट डाउन कर लें अपने नोटबुक्स में, चीक मीन्स चूजा। ओके, तो चीक क्या होता है, ग्रोथ जब करता है तो वो क्या बन जाता है, हैन बन जाता है। ओके, हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ह्यूमन ग्रोथ। हियर you see that when man birth, oh sorry, when man born, then they look like baby. After some year they look like, okay, after some year they look like this, and after some years they look like this, and after some year they look like this. That means जब हम लोग जन्म लेते हैं तो हम लोग ऐसा दिखते हैं, तो हमें से हम लोग बेबी कहलाते हैं। आफ्टर सम ईयर्स, जहाँ पर आप कर्सर देख रहे हैं, हम लोग ऐसा हो जाते हैं। आफ्टर सम ईयर्स हम लोग ऐसा दिखने लगते हैं, इस तरह। आफ्टर सम ईयर्स हम लोग इस तरह दिखने लगते हैं। आफ्टर सम ईयर्स हम लोग इस तरह दिखने लगते हैं। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द ग्रोथ ऑफ लिविंग things very well. Okay, now write down about living things grow on your notebooks, or you can take a screenshot of it. Okay, at first pause the video, then write down on your notebooks. Here लिविंग थिंग्स ब्रीद। दैट मीन्स लिविंग थिंग्स क्या करता है, ब्रीद करता है, और यू कैन से सांस लेता है। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीद, जितना भी लिविंग थिंग्स है वो क्या करता है, ब्रीद करता है। बिकॉज वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग ब्रीद नहीं करेंगे और लिविंग थिंग्स ब्रीद नहीं करेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। ओके, अ फिश ब्रीद through a special structure called gills. Okay, that means ये हुआ कि फिश ब्रीद करता है गिल्स से। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम लोग, हियर यू कैन सी ह्यूमन बीइंग्स ब्रीद थ्रू लंग्स। हम लोग लंग्स से ब्रीद करते हैं। अब आप लोग में से किसी बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि हम लोग तो नोज से ब्रीथ करते हैं, बट डोंट बी कंफ्यूज। नोज के थ्रू हम लोग के शरीर के अंदर, हम लोग बॉडी के अंदर इनर पार्ट में एयर जाता है और यू कैन से ऑक्सीजन जाता है, बट हम लोग ब्रीथ करते हैं किस चीज़ से, लंग्स से। ओके, प्लांट्स ब्रीथ थ्रू एस्टोमाटा। प्लांट्स किससे ब्रीथ करता है, एस्टोमाटा से ब्रीथ करता है। ओके, हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ एस्टोमाटा। हियर दिस इज लीफ, एंड आप यहाँ देख रहे हैं, जूम करके आपको दिखाया जा रहा है कि एस्टोमाटा कैसा होता है। एक टीनी होल होता है प्लांट में, उसके थ्रू क्या होता है, प्लांट ब्रीथ करता है। आप यहाँ देख रहे हैं ओपन एस्टोमाटा। जब वो ओपन रहता है उसको हम ओपन एस्टोमाटा कहते हैं, जब वो क्लोज हो जाता है उसे हम लोग क्लोज एस्टोमाटा कहते हैं।
अंडरस्टैंड। आप यहाँ देख रहे हैं ओपन स्टोमाटा से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड इन करता है। हम लोग जानते हैं कि प्लांट क्या होता है, ब्रीथ के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। दैट मीन्स ये हो गया कि ओपन स्टोमाटा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और क्लोज स्टोमाटा से ऑक्सीजन को रिलीज करता है। अंडरस्टैंड। आप इस पिक्चर को केयरफुली ऑब्जर्व करें और ध्यान से समझें कि स्टोमाटा क्या होता है। ओके, नाउ आई होप दैट you understand very well that what is living things, sorry, you understand very well that living things breathe. Now write down on your notebooks about it. At first pause your video or you can take a screenshot of it. Okay, now next is living things move. That means लिविंग थिंग्स क्या करता है, मूव करता है बाय ओन। दैट मीन्स ये हुआ, बाय ओन मीन्स ये हुआ कि वो उसे किसी के हेल्प की जरूरत नहीं होती है। लिविंग थिंग्स को, लिविंग थिंग्स खुद से मूव करता है। ओके, हियर ऑल लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट। जितना भी लिविंग थिंग्स है वो मूवमेंट शो करता है। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स क्या होता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवमेंट करता है। वाइल प्लांट्स शो मूवमेंट इन सम ऑफ देयर पार्ट्स ओनली। दैट मीन्स ये हो गया, ऑलवेज क्या होता है, बच्चे को कन्फ्यूज़न हो जाता है ये कि हम लोग ये पढ़ते हैं कि लिविंग थिंग्स मूव करता है और हम लोग ये भी जानते हैं कि प्लांट्स क्या है, लिविंग थिंग्स है। बट लिविंग थिंग्स को बट प्लांट्स को हम लोग मूव करते हुए नहीं देखते हैं जिस तरह हम लोग मूवमेंट करते हैं। शायद आप भूल रहे हैं, मूवमेंट मीन्स सिर्फ यही नहीं होता है कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना। जिस तरह हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, सिर्फ वही मूवमेंट नहीं होता है। हम लोग ग्रो भी कर रहे हैं तो वो भी एक तरह से मूवमेंट है। एक टाइम ऐसा था, आप इस इमेज में देखे थे, एक टाइम ऐसा था कि हम लोग भी ऐसा थे, बेबी थे। आफ्टर सम ईयर्स इस तरह ग्रोथ करते गए, तो ये भी एक तरह का क्या है, मूवमेंट है। अंडरस्टैंड। हम लोग जब ग्रोथ करते हैं, आप भी बच्चे हैं, आफ्टर सम ईयर्स आप बड़े हो जाएंगे, तो वो भी एक तरह क्या है, मूवमेंट है। डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट मूवमेंट। मूवमेंट मीन्स नॉट ओनली one place to another place. movement means also growth. ओके, दैट मीन्स ये हो गया, मूवमेंट मीन्स सिर्फ यही नहीं होता है कि हम लोग वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते हैं। जब हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं तो वो भी एक तरह क्या है, मूवमेंट है। अंडरस्टैंड। सो प्लांट्स भी क्या करता है, प्लांट्स में भी आप लोग जानते हैं, जब आप प्लांट को लगाते हैं तो वो क्या स्मॉल रहता है। आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम ईयर्स वो क्या होता है, ग्रो करता है और एक ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो भी एक तरह क्या हुआ, मूवमेंट है। ओके, तो लिविंग थिंग्स क्या करता है, मूव करता है। ओके, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ सम लिविंग थिंग्स एंड सम नॉन लिविंग थिंग्स। हियर यू कैन सी द लिविंग थिंग्स। आप लिविंग थिंग्स का पिक्चर यहाँ देख रहे हैं, जहाँ पे कर्सर है। आप इसके बारे में जानते हैं कि ये खुद से मूवमेंट करता है। बट आप हियर देख रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स का पिक्चर है। तो जब हम लोग इसको मूव करते हैं तभी ये मूव करता है। जब हम लोग साइकिल को चलाते हैं तभी साइकिल चलता है। आप भी साइकिल चलाते होंगे, तभी वो क्या होता है, साइकिल चलता है। ओके, नाउ पॉज योर वीडियो and write down this definition about living things move on your notebooks. मैं ऑलवेज आपको कहता हूँ कि जब भी आप ऑनलाइन क्लास करें तो आप हर वो चीज़, हर वो इम्पोर्टेंस फैक्ट, हर वो इम्पोर्टेंट पॉइंट को राइट डाउन करें। बिकॉज अगर आप राइट डाउन नहीं करते हैं, there is no important to attend the online class. Okay, or you can take a screenshot of it. Okay,
अगर आप ये कहेंगे कि सर किस चीज़ को आप प्रीफर ज़्यादा करते हैं, स्क्रीनशॉट और आप नोटबुक्स को, तो आप याद रखें कि ज़्यादा अच्छा होता है नोटबुक्स में आप राइट डाउन कर लें। बिकॉज़ अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं, और आप ये अच्छी तरह जानते होंगे, स्क्रीनशॉट लिया हुआ वो मोबाइल में ही रहता है, उसे हम लोग दोबारा फिर देखते नहीं हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल दैट write down all the things, all the points on your notebooks. Okay, here the next is living things reproduce. That means ये हो गया कि living things क्या करता है, reproduce करता है। मीन्स लिविंग थिंग्स से ही ग्रो होता है अदर लिविंग थिंग्स। ओके, ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। ऑल लिविंग थिंग्स क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग प्लांट को अगर हम लोग लगाते हैं, और यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ मैंगो ट्री। हम लोग जानते हैं कि मैंगो ट्री से मैंगो को हम लोग खाते हैं एज अ फ्रूट, और उसी से क्या होता है, आप उसको कहीं थ्रो कर देते होंगे खा के उसके सीड को, तो आफ्टर सम टाइम्स वहाँ पे देखते होंगे एक प्लांट ग्रो कर जाता है। दैट मीन्स ये हुआ ट्रीज से ही, मैंगो ट्रीज से ही मैंगो प्लांट ग्रो हो गया। इट मीन्स ये हुआ कि लिविंग थिंग्स क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। ओके, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स लाइक कैट्स, डॉग्स, काउज एंड एक्सेट्रा गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। दैट मीन्स ये हो गया ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स। एनिमल्स में भी आप देखते होंगे कैट्स का भी बच्चा, मतलब आप देखते होंगे कि वो बर्थ करता है, कैट को भी एक बेबी रहता है। डॉग्स का भी आप देखे होंगे, काउस का भी आप देखे होंगे, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं, वी कैन से दैट लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ हैन। आप यहाँ देख रहे हैं हैन का पिक्चर है, और ये हैन का एग्स है। तो आप जानते हैं कि हैन क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है बेबी को, और इसे हम लोग क्या कहेंगे, चिक कहेंगे और चूजा कहते हैं। ओके, नाउ आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल दैट व्हाट इज लिविंग थिंग्स। इट मीन्स व्हाट इज रिप्रोड्यूस। ओके, नाउ at first pause your video and then write down about living things reproduce on your notebooks. Okay, now next is living things have a life cycle. That means ये हो गया कि living things में क्या होता है, life cycle होता है। Let's understand, living things are born. That means ये हुआ living things born करता है। They grow up, वो ग्रो अप होता है, वो बड़ा होता है। रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस करता है। एंड डाई, दिस इज कॉल्ड अ लाइफ साइकिल। हम लोग इसको क्या कहेंगे, लाइफ साइकिल कहेंगे। इसे अच्छी तरह समझने के लिए यू कैन सी, यू कैन ऑब्जर्व दिस पिक्चर ऑफ फ्रॉग लाइफ साइकिल। फ्रॉग में क्या होता है, सबसे पहले वो एग देता है, एग्स से क्या निकलता, क्या बनता है, टैडपोल, है ना, यानी स्मॉल, और यू कैन से बेबी फ्रॉग। आफ्टर समटाइम्स वो क्या बनता है, मेटामॉर्फ बनता है, और आफ्टर समटाइम्स वो फ्रॉग बन जाता है। अब क्या होगा, फिर यही फ्रॉग क्या करेगा, एग्स देगा, फिर वो टैडपोल बनेगा, फिर मेटामॉर्फ बनेगा, फिर फ्रॉग बनेगा, फिर ये फ्रॉग एग्स देगा, टैडपोल बनेगा, फिर मेटामॉर्फ बनेगा, फिर फ्रॉग बनेगा। दैट मीन्स ये हो गया प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। एक साइकिल बन रहा है, आप देख रहे हैं, एक सर्कल बन रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे,
लाइफ साइकिल कहेंगे। फ्रॉग्स ही एग्स दिया, टैडपोल बना, मेटामॉर्फ बना, देन फ्रॉग बन गया। दैट मीन्स वही चीज रिपीट होके वापस आ गया, हम लोग उसको क्या कहेंगे? लाइफ साइकिल कहेंगे। और हम लोग अपने बारे में भी जानते हैं, हम लोग जब बॉर्न करते हैं तो बेबी रहते हैं, फिर ग्रो अप करते हैं, फिर बड़ा होते हैं, है ना। ग्रो अप मीन्स बड़ा होते हैं, उसके बाद ओल्ड होते हैं, उसके बाद क्या होता है? डाई कर जाते हैं। दैट मीन्स इसी हम लोग क्या कहेंगे? लाइफ साइकिल कहेंगे। ओके, नाउ राइट डाउन on your notebooks about living things have a life cycle. At first, pause your video. Okay, I repeat always about write down on your notebooks because it's very important to write down on your notebooks. Okay, it is very important. If you are not write down, then I think there is no important to give the class. Okay, now living things die. That means ये हो गया living things die करता है, हम लोग भी die करते हैं, आफ्टर सम टाइम हम लोग भी डेथ कर जाएंगे। ऑल द थिंग्स दैट आर लिविंग, जितना भी लिविंग थिंग है, सॉरी, ऑल द थिंग्स दैट आर लिविंग डाई सम डे। दैट मीन्स ये हो गया जितना भी लिविंग थिंग्स है, जितना भी थिंग्स है जो लिविंग है, वो क्या होता है? आफ्टर सम टाइम्स वो डाई कर जाता है। इट मीन्स लिविंग थिंग्स हैव अ फिक्स्ड टाइम, सॉरी, फिक्स्ड लाइफ स्पेन। दैट मीन्स ये हो गया, हम लोग जानते हैं कि लिविंग थिंग्स का क्या होता है? एक फिक्स्ड लाइफ स्पेन होता है। जैसे हम लोग में से आप देखते होंगे अपने सराउंडिंग में, अपने नेबरिंग में, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ओल्ड होके डेथ करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं यंग में ही डेथ कर जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं वो चाइल्ड ही रहता है डेथ कर जाता है। दैट मीन्स यू कैन से दैट ऑल लिविंग थिंग्स हैव अ फिक्स्ड लाइफ स्पेन। आप ये भी देखते होंगे कुछ एनिमल्स को, ऑफ सपोज यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ काउज। आप काउज में देखते होंगे आफ्टर सम टाइम्स वो डेथ कर जाता है। और यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ डॉग्स, आप डॉग्स को भी देखते होंगे कि आफ्टर सम टाइम्स वो क्या होता है? डाई कर जाता है, डेथ कर जाता है। सो वी कैन से दैट ऑल लिविंग थिंग्स हैव अ फिक्स्ड लाइफ स्पेन। ओके, लिविंग थिंग्स दैट आर नो मोर अलाइव आर कॉल्ड डेड थिंग्स। इट मीन्स ये हो गया कुछ ऐसे लिविंग थिंग्स को आप देखते होंगे, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स में आप देखते होंगे, प्लांट्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो क्या है? लिविंग थिंग्स है। अंडरस्टैंड? प्लांट्स के बारे में हम लोग जानते हैं वो लिविंग थिंग्स है। बट प्लांट से अगर हम लोग एक वुड को ब्रेक कर लेते हैं और सपोज दैट लीफ अगर उससे टूट के गिर जाता है, तो वो लीफ क्या हो जाता है? वो अब लिविंग थिंग्स नहीं रहा। वंस अगेन हम लोग जानते हैं ट्री से हम लोग वुड हमें मिलता है, और उस वुड से हम लोग फर्नीचर बनाते हैं। आप लोग जानते हैं, क्या आपने कभी फर्नीचर को फूड दिया खाने के लिए? या फूड कभी फर्नीचर ने आपसे फूड मांगा? नहीं मांगा, बिकॉज फर्नीचर क्या है? न लिविंग थिंग्स है। बट फर्नीचर कहाँ से आया? किसी न किसी ट्रीज से आया। और यू कैन से लिविंग थिंग्स से ही हम लोग फर्नीचर बनाए हैं। बट फर्नीचर क्या है? दैट मीन्स वुड क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। तो हम लोग कह सकते हैं इससे क्या बोलेंगे? डेड थिंग्स बोलेंगे। दैट मीन्स लिविंग थिंग्स दैट आर नो मोर अलाइव आर कॉल्ड डेड थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, वुड इज अ डेड थिंग्स। वुड क्या है? डेड थिंग है। बिकॉज वुड किससे आया है? लिविंग थिंग से आया है। बट वो है क्या? नॉन लिविंग है। आया किससे? लिविंग थिंग से आया। बट वो है क्या? नॉन लिविंग थिंग्स है। सो वी कैन से दैट वुड इज अ डेड थिंग। ओके, नाउ राइट डाउन ऑन योर नोटबुक about living things die. At first, pause your video. Here,
नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स, दैट मीन्स आप अपने सराउंडिंग में डिफरेंट टाइप्स का थिंग्स देखते होंगे, जिसमें क्या होता है, कुछ ऐसे थिंग्स होते हैं वो नेचुरल मेड रहता है, कुछ ऐसा होता है वो मैन मेड रहता है. ओके. At first, natural things. Some things like the sun, the moon, the rocks, wood and water are not made by men. That means ये हो गया, हम लोग जानते हैं कि मून, रॉक्स, वुड, सन को हम लोग ने नहीं बनाया. हम लोग इसे क्या कहेंगे? नेचुरल थिंग्स कहेंगे. दे आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स. ओके. नाउ नेक्स्ट इज मैन मेड थिंग्स. Non-living things like book, train, house, clothes, pencil and paper are man-made. That means ये हुआ कि non-living things, sorry wait, here some error. No, it is right. Non-living things like book, train, house, clothes, and paper are made by man. That means ये हुआ non-living things कुछ ऐसे हैं जो बुक, ट्रेन, हाउस, क्लोथ्स, पेपर, ये सब क्या है? मैन मेड है. इसे हम लोग बनाया है, इसे हम लोग ने बनाया है. सो वी कैन से दैट दे आर कॉल्ड man made things. Okay. Once again I would like to repeat: natural thing, some things like the sun, the moon, rocks, wood and water are not made by man. That means ये हो गया कि कुछ ऐसे थिंग्स हैं हमारे सराउंडिंग में, वो क्या होता है, वो नेचुरली प्रेजेंट रहता है हमारे सराउंडिंग में, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? नेचुरल थिंग्स कहेंगे. Or you can say that all living things are natural things. Okay. In a one sentence, write down on your notebooks: all living things are natural things. Okay. Once again, all living things are natural things. Okay. Here, non-living things like book, train, house, clothes and paper are made by man. non-living things क्या होता है? हम लोग के द्वारा बनाया जाता है. हम लोग उसको क्या कहेंगे? मैन मेड थिंग्स कहेंगे. और यू कैन से दैट all non-living things are man made things. Okay. Once again, all non-living things are man-made things. Write down on your notebooks about natural and man-made things. At first, pause your video. Now, today's work for you. Here are some questions for you. Why do living things need food? Understand? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने नोटबुक्स में बना के रखें. हाउ डू प्लांट्स शो ग्रोथ? व्हाट इज अ डेड थिंग? व्हाट इज अ लाइफ साइकिल? डू नॉन लिविंग थिंग्स मूव? ओके. नोट डाउन ऑन योर नोटबुक्स or take a screenshot of it. Okay. Now the video is end and this video is for class 3 and I hope that you all understand very well about things around us. If you don't understand, if you got any confusion during class, then write down on your comment box
if you got any confusion. Or I recommend you, I request you all that repeat the class always. It means आप एक बार वीडियो देखें, फिर दोबारा देखें, फिर देखें. होता क्या है, जब हम लोग कोई भी चीज़ को लर्न करते हैं तो वो हमारे मेमोरी में, वो हमारे माइंड में 24 आवर्स के लिए रहता है. इट मीन्स ये हुआ, सपोज दैट अभी आप लर्न कर रहे हैं तो ये 24 आवर्स के लिए आपके माइंड में रहेगा. उसके बिफोर हमें 24 आवर्स के बिफोर हमें एक बार फिर से रिकॉल करना पड़ेगा वही चीज़ जो चीज़ को हम लोग पढ़े थे. ओके, दैट मीन्स ये हो गया कि 24 आवर्स में, आई वॉन्ट टू से दैट 24 आवर्स में हमें रिवीजन कर लेना चाहिए. और देन आफ्टर 1 वीक, फिर 1 वीक, विद इन अ 1 वीक उसे रिवीजन कर लेना चाहिए. देन विद इन 1 मंथ अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आई थिंक वो क्या होता है, आपके परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाता है. आप जब कंप्यूटर पढ़ते होंगे उसमें मेमोरी होता है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी होता है. तो हम लोग जब ये अभी पढ़ लिए एक बार, ये सेकेंडरी मेमोरी में है, बट उसको बार बार अगर रिकॉल करते रहेंगे, उसको रिपीट करते रहेंगे तो क्या होगा, वो प्राइमरी मेमोरी में चला जाएगा. और जब प्राइमरी मेमोरी में चला जाएगा और यू कैन से दैट परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा तो वो ऑलवेज हमारे माइंड में सेव हो जाएगा. सो क्या करना चाहिए, हमें ऑलवेज रिपीट करना चाहिए. ओके, थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड I hope that you are staying at home, you are with your family, and I hope I request you all that maintain all the rules of lockdown. Don't break the rules of lockdown. Okay, thank you to all. That's all.